میرے ساتھ ہیلتھ ایشوز رہے جس کی وجہ سے میں چرچ بھی نہیں آ پائی، لیکن خدا ان کی شکر گزار ہوں، خدا ان کی شکر گزاری کرتی ہوں تہہ دل کے ساتھ کہ اس نے پھر سے ایک بار مجھے آپ کے درمیان میں کھڑا کیا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ یہ خدا ان کا فضل ہے، یہ اس کی قدرت ہے، اس کا جلال ہے جو وہ ہماری زندگیوں سے ظاہر کرتا ہے۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ آج کتنے لوگ خدا ان کے کلام کو سیکھنے کے لیے آئے ہیں؟ ہاللیلویا۔ یقیناً جب ہم سوچ کر آتے ہیں کہ آج ہم خدا کے کلام کو سیکھیں گے، اسے اپنے دل میں جگہ دیں گے، تو پھر خدا کا کلام ہماری زندگیوں کے اندر کام کرتا ہے، پھر وہ ہمارے دلوں کو تیار کرتا ہے اس مٹی کی طرح جس کے اندر بیج بویا جاتا ہے اور وہ پھلدار ثابت ہوتا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ سو آئیں خدا کے کلام کی طرف چلیں گے۔ خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 58 باب، اس کی 4 آیت کے آگے والے حصے سے خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے۔ یہاں پر خداوند کے کلام میں لکھا ہے، بس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے ہو کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے۔ کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے؟ ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو چھاؤ کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے۔ کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداوند کا مقبول ہو؟ آمین، آمین۔ آئے ہم سب تشریف رکھیں گے۔ آج ہم خداوند کے کلام میں سے جس حوالہ کو ہم نے پڑھا ہے، جس آیت کو خداوند کے کلام میں سے ہم نے سیکھا ہے، وہاں پر آج ہم 4 باتوں پر غور کریں گے۔ کتنی باتوں پر غور کریں گے؟ کتنی باتوں پر غور کریں گے؟ 4 باتوں پر غور کریں گے۔ ان 4 باتوں میں سے پہلی بات یہ ہے، جیسا کہ ہم روزوں کے بارے میں سیکھ رہے ہیں، روزوں کی تعلیم ہمیں مل رہی ہے، تو یہاں پر خدا کا بندہ بیان کرتا ہے، لکھتا ہے کہ خداوند کہتا ہے۔ خداوند کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے۔ وہ یہاں پر خداوند خود کہہ رہا ہے کہ ایسا روزہ، کیسا روزہ؟ ایسا روزہ۔ اگر آپ اس کو ورڈ ٹو ورڈ پڑھیں تو لکھا ہے کہ بس تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے۔ یہ خداوند کے خود کے الفاظ ہیں۔ ہاللیلویا۔ لکھا ہے کہ اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے ہو۔ کیسا روزہ؟ جیسا خداوند چاہتا ہے۔ کیسا روزہ؟ جیسا خداوند چاہتا ہے۔ آگے خداوند نے ہمیں 4 باتیں بتائی ہیں کہ اگر روزہ رکھ کر تم ان 4 باتوں پر عمل کرتے ہو، یہ 4 باتیں تمہاری زندگی کے اندر وقوع پذیر ہیں، تو پھر وہ روزہ جو ہے مجھے کیا ہے؟ قبول ہے۔ ہاللیلویا۔ آج ہم انہی 4 باتوں پر غور کریں گے۔ پہلی بات جس پر آج ہم غور کریں گے وہ یہ ہے کہ اپنی جان کو دکھ دینا۔ ہاللیلویا۔ کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے؟ ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے۔ ہاللیلویا۔ ایسا روزہ جو مجھے پسند ہے، اس میں آدمی کیا کرے؟ اپنی جان کو دکھ دے۔ اب اپنی جان کو دکھ دینے کا کیا مطلب ہے؟ اپنی جان کو دکھ دیا جائے، خدا کا اس سے کیا مطلب ہے؟ یہ کہ ہم اپنے جسم پر ظلم کریں، یا یہ کہ ہم اپنے جسم کو چوٹ پہنچائیں، یا یہ کہ ہم اپنی جان کو جو ہے وہ ماریں پیٹیں یا اپنے آپ کو ہلاک کریں؟ کیا خداوند یہ چاہتا ہے؟ خداوند چاہتا ہے کسی کی ہلاکت تک نوبت نہ پہنچے۔ ہاللیلویا۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہماری توبہ تک نوبت آئے۔ اس الفاظ کے اندر خداوند کا نہایت گہرا بھید چھپا ہوا۔ عام لوگ جب ہم عام طور پر کلام کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں انسان اپنی جان کو دکھ دے، روزہ رکھے تو اپنی جان کو دکھ دے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم
जब हम दुनियावी तौर पर रोजा रखते हैं हम इसको दुख समझते हैं। जब हम खुदावंद से दूर होते हैं और सिर्फ हम भूख और प्यास का रोजा रखते हैं तब हम इसको समझते हैं कि ये नहायत हमारी जान का दुख है। लेकिन खुदावंद कहता है कि अपनी जान को दुख दो। अपनी जान को दुख देने से मतलब है खुदावंद चाहता है कि हम अपनी जिंदगियों के अंदर तब्दीली को लेकर आए। अपनी जिंदगी के अंदर हम खुदा के कलाम को पूरा करें। खुदा का कलाम कहता है कि तू गरूर ना कर। खुदा का कलाम कहता है तेरे अंदर से तकब्बुर जाता रहे। खुदा का कलाम कहता है तेरे अंदर से शरारत जाती रहे। खुदा का कलाम कहता है तेरे अंदर से झगड़े जाते रहे। खुदा का कलाम कहता है तेरे अंदर से बदी जाती रहे। खुदा का कलाम कहता है तेरे अंदर से गुनाह जाता रहे। और जिस वक्त हम अपनी जिंदगी को इन चीजों से दूर करते हैं, जब हम अपनी जिंदगी के अंदर इन चीजों को देखते हैं, हम महसूस करते हैं कि हम गुनाहगार हैं, हम नहायत गुनाहगारी की हालत के अंदर हैं और हम अपने आप को रोकते हैं गुनाह करने से, हम अपने आप को रोकते हैं बदी करने से, हम अपने आप को रोकते हैं तकब्बुर करने से, हम अपने आप को रोकते हैं गरूर करने से, हम अपने अंदर की अना को जिस वक्त खत्म करते हैं वो है हमारी जान को दुख देना। हालेलुया। अपनी जान को दुख देना। इंसान कहता है मैं हूं। हालेलुया। क्या हूं मैं ये मैं वो हूं, मैं सबसे बेहतर। ये है हमारे अंदर का जो खुदावंद चाहता है कि हम इसको अपने अंदर से खत्म करें। और ये नहायत मुश्किल काम है। भूखा रहना आसान है, प्यासा रहना आसान है, लेकिन अपने अंदर से अपना गरूर, अपना तकब्बुर, अपना बड़ापन खत्म करना ये बहुत मुश्किल है। और खुदावंद चाहता है कि जब तू रोजा रखे तो तू ऐसा रोजा रख के तू अपनी जान को दुख दे। हालेलुया। तू अपनी अना को खत्म कर, तू अपने तकब्बुर को खत्म कर, तू अपने अंदर की तमाम बदी को, तू अपने अंदर के तमाम गुनाह को खत्म कर दे, उसको पीछे हटा दे, अपनी जिंदगी से दूर कर दे। उस वक्त जब तू बिल्कुल आजिज़ हो जाएगा, उस वक्त जब तू बिल्कुल हलीम हो जाएगा, उस वक्त जिस वक्त तू बिल्कुल मुलायम हो जाएगा, उस वक्त तेरा जो रोजा है वो मुझे क्या होगा? कबूल होगा। हालेलुया। क्योंकि जिस हम आगे वाली बात पर जिक्र करने वाले हैं वो इसी चीज को साबित करती है। हालेलुया। आगे देखेंगे कि वहां पर लिखा है और अपने सर को झाओ की तरह झुकाएं। किसकी तरह झुकाएं? सब बोलेंगे किसकी तरह झुकाएं? झाओ की तरह झुकाएं। सबको मेरी बात समझ आ रही है? समझ आ रही है आपको मेरी बात कि मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ? कि खुदावंद हमसे ऐसा रोजा चाहता है जिसमें खुदावंद ने हमें स्टेप बाय स्टेप कवानीन दिए हैं। स्टेप बाय स्टेप वो हमें सिखा रहा है कि बेटे तूने रोजा इस तरह से रखना जो मेरा मकबूल है, जिसको मैं कबूल करूंगा। उसके लिए क्या करना है? तूने अपनी जान को दुख देना है। सिर्फ रोटी और पानी को छोड़कर नहीं, बल्कि तूने हर उस चीज को अपने अंदर से खत्म करना है जो मुझे नापसंद है। फिर तेरा रोजा क्या होगा? मुझे कबूल होगा। अगली बात है कि अपने सर को झाओ की तरह झुकाना है। अब पहले देखेंगे कि झाओ क्या चीज है। हमने झाओ की तरह अपने सर को झुकाना है तो हमें झाओ का पता होना चाहिए कि झाओ क्या चीज है। जो मुझसे बड़े हैं उन्होंने तो देखे होंगे कि पानी के नालों के साथ या जहां पर पानी होता था वहां पर काने उगे होते थे। काने, उन कानों के साथ जो है काना बिल्कुल सीधा होता है, सीधा बहुत अकड़ा हुआ होता है और बिल्कुल भी वो इधर उधर नहीं होता। लेकिन काने के साथ एक और चीज होती है, वो काने के साथ साथ उगती है और वो इतनी नरम और मुलायम होती है कि जब नहर का या नाले का पानी ऊपर तक आता है या उसमें बहाव आता है और वो बड़ी तेजी से बहता है तो वो जब उसके साथ टकराता है तो जो काना होता है ना, जो बिल्कुल सीधा और सख्त होता है, वो तो टूट जाता है। लेकिन उसके साथ जो चीज होती है ना, जो पौधा टाइप उसके साथ चीज होती है जो साइडों से निकली हुई होती है, वो जो उसके साथ साथ होती है ना, वो काने के टूटने के
बावजूद भी उस पानी के बहाव के साथ क्या होती है, बह जाती है, जमीन के साथ लेट जाती है, बिल्कुल पूरे तरीके से वो अपने आप को झुका लेती है और जमीन के बिल्कुल साथ लेट जाती है। जितना मर्जी पानी का प्रेशर क्यों ना हो, जितना मर्जी पानी का दबाव क्यों ना हो, जितनी मर्जी पानी की कुव्वत क्यों ना हो, वो उसके ऊपर से गुजर जाती है। और जिस वक्त सारा पानी उसके ऊपर से गुजर जाता है ना, वो फिर उठकर सीधी खड़ी हो जाती है। उसे झाव कहते हैं। और कलाम कहता है कि तू अपने सर को झाव की तरह झुका दे, उस झाव की तरह तो पूरी तौर पर अपने खुदावन के आगे झुक जाए, तो जमीन के साथ तक लग जाए। अगर तेरी जिंदगी के अंदर कोई दुख आए हैं, तेरी जिंदगी के अंदर कोई परेशानियां हैं, तेरी जिंदगी के अंदर कोई प्रॉब्लम्स हैं, वो जितनी बड़ी क्यों ना हो, जितनी बड़ी मर्जी क्यों ना हो, अगर तू झाव की तरह झुकना सीख लेगा, अगर तू झाव की तरह झुकना तुझे आ जाएगा, और जिस वक्त परेशानियां आएंगी, दुख आएंगे, तकलीफें आएंगी, तो झुकता जाएगा, तो झुककर जमीन के साथ भी लग जाएगा। तो मेरे बेटे, मेरी बेटी, तूने झाव की तरह झुकना सीख लिया, और जब वो ऊपर से गुजर जाएंगी, मैं तुझे उठना भी सिखा दूंगा। हालेलुया। ये वो रोजा है जो खुदा हमारी जिंदगी से चाहता है। वो चाहता है कि हम अपनी जान को दुख दें और अपने सर को झाव की तरह झुका लें। हालेलुया। आजिज़ हो जाएं, हलीम हो जाएं, हम इतने ज़्यादा नर्म और मुलायम हो जाएं, इतने लचीले हो जाएं कि जितनी मर्जी प्रॉब्लम क्यों ना आए, जितना मर्जी बहाव क्यों ना हो, जितनी मर्जी कुव्वत ताकत क्यों ना हो, हम काने की तरह टूट कर बह ना जाएं, बल्कि हम क्या करें, हम झुक जाएं। और झुकना ना है तो मुश्किल है। हालेलुया। अपने अंदर की खुदी को जब इंसान ख़त्म करता है, अपने अंदर के तकब्बर को ख़त्म करता है, फिर वो झुकता है। अगर इंसान तकब्बर और गुरूर में हो तो कभी नहीं झुकता। जब तकब्बर गुरूर इंसान के अंदर से बदी गुनाह ख़त्म होगा, फिर उसके झुकने का प्रोसीजर शुरू होगा। अगर ये सारी चीज़ें हमारे अंदर मौजूद हैं, तो फिर झाव की तरह झुकना नामुमकिन काम है। फिर करने वाला काम है कि जब बहाव आएगा तो हम बह जाएंगे, फिर न जाने कहाँ जाकर रुके। लेकिन जिस वक्त हम झुकना सीख लेते हैं, आजिज़ी सीख लेते हैं, हम बर्दाश्त करना सीख लेते हैं, उस वक्त हम अपनी जान को दुख देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आगे की बात देखेंगे कि आगे खुदा हम क्या सिखाना चाहते हैं। और लिखा है, और अपने नीचे टाट और राख बिछाओ, टाट बिछाओ। हालेलुया। टाट जो है वो एक लिबास पहना जाता था। जब रोज़ा रखा जाता था तो टाट ओढ़ा जाता था। टाट ओढ़ने के बाद क्या किया जाता था, दुआ की जाती थी। हालेलुया। सिर्फ ये नहीं कि रोज़ा रखकर टाट पहनकर बैठ गए। जब नैमा शहर को बताया गया कि तुम्हें जो है वो बर्बाद कर दिया जाएगा, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने क्या किया था, टाट ओढ़ा था, उन्होंने रोज़ा रखा था। टाट ओढ़ने का मतलब है कि अपने आप को तौबा की हालत के अंदर लेकर आना। हालेलुया। किसकी हालत के अंदर लेकर आना, तौबा की हालत के अंदर लेकर आना, खुदावंद से माफ़ी मांगना, अपने गुनाहों का इकरार करना, अपने आप को खुदावंद के आगे खोल कर रख देना। जब नैना को बताया गया था कि तुम्हारी जो बदकारी है, तुम्हारा जो गुनाह है, वो मेरे आगे बढ़ चुका है, मेरे आगे उसकी इंतहा नहीं रही है,
आवाज को स्टॉप कर दिया। हालेलुया। ये है तौबा। टाट ओढ़ना जो है अपने खुदावंद से तौबा करना। हालेलुया। सिर्फ टाट ओढ़ लेना अगर हम देखें तो वो सिर्फ एक लिबास है, लेकिन जब उसको पहनकर हम झुक जाते हैं, जब उसको पहनकर हम अपनी जान को दुख देते हैं, जब उसे पहनकर हम तौबा की हालत के अंदर आ जाते हैं, जब उसे पहनकर हम अपना दिल पूरा खोलकर अपने खुदावंद के आगे रख देते हैं, इकरार कर लेते हैं कि हाँ खुदावंद हम गुनाहगार हैं, लेकिन हम तो गुनाहगार हैं, तू माफ करने की कुदरत रखता है। और जिस वक्त हम इकरार कर लेते हैं, हम जितने मर्जी गुनाहगार क्यों ना हो, हम जितने मर्जी गंदे क्यों ना हो, हम जितने मर्जी बदकार क्यों ना हो, हमारा खुदावंद खुदा हमें बर्फ की मानद साफ करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। वो कहता है कि अपने आप को जो है वो तैयार करो, तुम रोजा रखो जो मुझे कबूल ठहरे, ताकि तुम्हारी आवाज जो है वो आलमे बाला पर सुनी जाए। आज हम रोजे रखते हैं, पूरे रोजे रखते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। हम रोजे रखते हैं, जिस्मानी तौर पर जिस्म को दुख भी देते हैं, सिर्फ रोजा रखकर उस दिन झुक भी जाते हैं। रोजा खत्म, झुकाओ खत्म, रोजा खत्म, फिर वही तकब्बुर, फिर वही गरूर, फिर वही बदतमीजियां, फिर वही झगड़े, फिर वही गुनाह, फिर वही बदकारियां, हर वो चीज हमारी जिंदगी के अंदर वापस आ जाती है। नहीं, खुदा चाहता है कि मुसलसल तौर पर जब तुम अपनी जिंदगी को इस तरह का बना लोगे, उस वक्त क्या होगी, तुम्हारी आवाज आलमे बाला तक पहुंच जाएगी। हालेलुया। उस वक्त जब हम हाथ उठाकर खुदावन से मांगेंगे, वो हमें देने में देर ना करेगा। हालेलुया। वो कहते हैं कि राख, उन्होंने क्या किया, टाट ओढ़ा और राख बिछा दी। राख का मतलब क्या है? राख तो राख होती है। जब कोई डेथ हो जाती है या किसी के घर में फौतगी हो जाती है, तो जब पास्टर जो हैं साहिबान जनाजा करने जाते हैं, तो वहाँ पर जब जनाजे को कब्र के अंदर उतारा जाता है, तो वो मिट्टी को लेते हैं और दुआ करते हैं कि राख राख के सुपुर्द और खाक खाक के सुपुर्द। इसका क्या मतलब है कि राख राख के सुपुर्द और खाक खाक के सुपुर्द? इसका मतलब है कि जो राख और खाक है, ये मौत की निशानी है, ये दफन होने की निशानी है। जब दफन किया जाता है तब कहा जाता है कि राख राख के सपुर्द और खाक खाक के सपुर्द। इसका मतलब है कि आज जरूरत है कि हम अपनी जिंदगी के अंदर से ये सारी चीजों को निकालें, इन सारी चीजों को हम अपनी जिंदगी के अंदर से पकड़ें और राख कर दें। हालेलुया। हालेलुया। आपको समझ आ रही है मेरी ये बात कि हम अपनी जिंदगी के अंदर से ये सारी चीजों को पकड़ें, इन सारी चीजों को हम निकालें, गौर करें अपनी जिंदगी के ऊपर और इन चीजों को क्या करें, राख के हवाले कर दें, ताकि ये गुनाह, ये तकब्बुर, ये परेशानियां, ये दुख, ये तकलीफें, ये गुनाह, ये बदी जो हमारी जिंदगी के अंदर से है, ये सारी की सारी दफन हो जाए और जब हम खुदावंद में आए तो हम नए बदन हो। हालेलुया। और वो बदन खुदावंद का मक़दस होना चाहिए। हालेलुया। उस वक्त क्या होगा, हमारा रोजा खुदावंद को कबूल होगा। उस वक्त खुदावंद कहेगा कि हाँ मेरे बेटे, हाँ मेरी बेटी, तेरी आवाज मेरे कानों तक पहुंच रही है, क्योंकि वो आलमे बाला पर, हालेलुया, आलमे बाला पर खुदावंद की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सिला। हालेलुया। आलमे बाला पर खुदावंद की तमजीद हो। आज वक्त है कि अगर हम रोजेदार हैं, आज वक्त है कि अगर हम रोजा रखते हैं, तो फिर जरूरत है कि हमारी आवाज आलमे बाला पर जाए, हमारी आवाज आलमे बाला पर पहुंचे। अगर नहीं पहुंच रही तो गौर करें जिंदगियों के अंदर इन चारों चीजों में से किसी में कोई कमी तो नहीं आ रही। क्या हमने अपनी जान को दुख दिया है? क्या हमने अपने आप को झाव की तरह झुकाया है? क्या हमने तौबा का टाट ओढ़ा है? क्या हमने अपने गुनाहों को दफन करने वाली राख अपने सर में डाली है या नहीं डाली है? क्या वो गुनाह आज भी हमारी जिंदगियों के अंदर है या नहीं है? क्योंकि ये सोचना, ये कहना कि हाँ हम गुनाहगार हैं, कोई बुरी बात नहीं। हम गुनाहगार हैं, हम तो पल
बातों बातों में गुनाह करते हैं, तो फिर अपने खुदा से माफ़ी मांगना, गिरियाजारी करना, झुकना कोई मसला नहीं है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अपने खुदा के आगे झुक जाए, खुदावन से कहें कि खुदावन हमारी आवाज़ आलमे वाला पर नहीं पहुंची, हमारी ज़िंदगी के अंदर कमी है, हमें उस कमी को दूर करना सिखा। खुदावन हमें सिखा कि हम इस तरह से अपनी ज़िंदगी को गुजारें कि जब हम रोज़ा रखें तो वो तेरे हजूर मकबूल ठहरे। हालेलुया। जिस वक्त हम अपनी ज़िंदगी के अंदर से ये सारे काम जारी कर देंगे, उस वक्त हमारी ज़िंदगियाँ खुदावन के हजूर में मकबूल ठहरना शुरू हो जाएंगी। आज हमें सीखने की ज़रूरत है। हम रोज़े बहुत रखते हैं, लेकिन हम ये नहीं सीखते कि हमारी ज़िंदगियों के अंदर किन तब्दीलियों की ज़रूरत है। कलाम मुक़द्दस के अंदर बहुत से रोज़े हमें मिलते हैं, जो नबी हैं, पैगंबर हैं, या बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने रोज़े रखे हैं और खुदा से अपनी बात को मनवाया है। क्या आज हम रोज़ा रखते हैं और हमारी बात मानी जाती है? क्या हम रोज़ा रखते हैं और हमारी आवाज़ आलमे वाला पर पहुंचती है? नैनवा वालों ने रोज़ा रखा, मुल्क बचा लिया। आस्था ने रोज़ा रखा, मुल्क बचा लिया। और भी बहुत से ऐसे रोज़े हैं जिन्होंने रोज़े रखे और उन्होंने क्या किया, ज़िंदगियों को महफूज किया। आज ज़रूरत है कि जब हम रोज़ा रखें तब हमारी ज़िंदगी, रूहानी ज़िंदगी महफूज हो जाए। हालेलुया। हमारी रूहानियत महफूज होनी चाहिए। आज हम फिर रहे हैं ज़मीन के ऊपर, लेकिन रूहानी ज़िंदगी हमारी महफूज नहीं है। इब्लीस जब चाहता है हम पर हमला कर देता है, जब चाहता है वो हमें घसीटता है, रोनता है, लेकिन ज़रूरत है कि उसको हम रोकें। और जिस वक्त हमारी ज़िंदगी के अंदर खुदा का कलाम जड़ पकड़ेगा, उस वक्त हमारी ज़िंदगी के अंदर ये सारे काम होंगे। सादिक गिरता है तो खुदा उसे उठा खड़ा करता है। हालेलुया। ये तो नहीं है कि सादिक गिरता ही नहीं। अगर सादिक हो जाए तो क्या गिरता ही नहीं, सादिक गिरता है। और ज़रूर है कि सादिक गिरे, क्योंकि जिस वक्त सादिक गिरेगा और खुदा उसे उठा खड़ा करेगा, उस वक्त लोग देखेंगे कि ये तो सादिक था, ये तो बड़ा ईमानदार था, ये तो बड़ा खुदा को मानने वाला था, ये गिरा और खुदा ने इसे उठा खड़ा किया। हम भी एक सादिक बनेंगे, हम भी अपनी ज़िंदगी सादिकों की तरह गुजारेंगे, हम भी अपनी ज़िंदगी के अंदर सादगी लेकर आएंगे। हम अपनी जान को दुख देंगे, अपने सर को छाव की तरह झुकाएंगे और हम तौबा का टाट पहनेंगे और हम अपने गुनाहों को दफन करके उस राह को जब अपनी ज़िंदगी के अंदर लेकर आएंगे, हम भी एक सादिक बन जाएंगे। और जब हम गिरेंगे, हमारा ईमान है कि हमारा खुदा हमें उठाने की कुदरत रखता है। हालेलुया। जब सादिक गिरेंगे तभी खुदा उनको उठा खड़ा करेगा। हालेलुया। सो हमें सादिक बनने की ज़रूरत है, ताकि हमारा खुदावन, आपका खुदावन और मेरा खुदावन हाथ बढ़ाकर कहे कि आओ मेरे बेटे और बेटियों, मैं तुम्हें उठा खड़ा करूँ। हालेलुया। 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 क्योंकि जब इंसान टूटता है, अगर आपने किसी चीज़ को देखा हो कि जब वो टूटता है या वो फूटता है तो एक नई चीज़ निकलती है। एक बीज को जब हम ज़मीन के अंदर बोते हैं तो वो टूटता है बेचारा, उसको बड़ी तकलीफ होती है, पेनफुल होता है, वो टूटता है, उसके अंदर से जड़ निकलती है। तो जब हम टूटते हैं तो इस बात पर ना जाएं कि हम परेशान हो गए हैं, हम दुखी हो गए हैं, हम तकलीफ में हैं, बल्कि इस बात की खुशी मनाएं कि अगर हम टूटे हैं, अगर हम परेशान हुए हैं, अगर हम दुखी हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिखर जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि हम खत्म हो जाएंगे, बल्कि इसका मतलब ये है कि खुदा आपकी ज़िंदगियों से एक नया काम करना चाहता है। हालेलुया। ये खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि वो हमें टूटने के बावजूद एक नई जड़ पकड़ने की कुव्वत देता है। हालेलुया। सो जब खुदावंद जिंदगी के अंदर होता है तभी जड़ पकड़ी जाती है, उसके अलावा, खुदावंद के अलावा कुछ भी नहीं। यीशु के बगैर हम कुछ भी नहीं है। हालेलुया। यीशु के बगैर कोई कुछ नहीं है। अगर यीशु है तो सब कुछ है, यीशु जिंदगी के अंदर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। सो आज खुदावंद के कलाम से हमें यकीनन नहायत बरकत मिली है, क्योंकि मैंने भी बरकत पाई है। हालेलुया। सो खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। खुदावंद का कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो।